NDTV. I'm Anjali Istwal and I am at Jahangir Puri right now. The same place that is still reeling under the onslaught. Two assaults, I would say. One, a riot that they had to bear, and then an attack of bulldozers, of MCDs that came over here, and this is what you see behind me. This is the condition of some of the shops over here. These shops, according to the MCD, they had encroached upon public space, and that is the reason why they came here and they removed the encroachment. But the big question is, was this encroachment new? Was this drive planned? The answers to this is that encroachment is a very common thing if you look around here, but it's been existing here for the last more than 30 years. There are, as you can see over here, here is Mr. Gupta, Ganesh Gupta, and he is removing whatever can be salvaged from his shop to be sold as scrap, I guess. Gupta साहब, ये सब निकाल क्यों रहे हैं? अब क्या करें, जो तोड़ फोड़ दिए हैं अब ले जा रहे हैं, नहीं तो सब रात को उठा ले जाएंगे, क्या करें हम? तो अब ये कबाड़ हो गया है? कबाड़ हो गया, देखिए ना, शटर वोटर सब ये सब तोड़ दिए। तो ये मैं आपका इंटरव्यू भी देख रही थी, आप कह रहे हैं कि आपकी ये जो दुकान है ये लीगल है? लीगल है जी, 1900 डीडीए ने अलॉटमेंट कर रखा है इसको, 1977 में अलॉटमेंट। जहांगीरपुरी में 13 दुकानें अलॉटमेंट की हुई है, एक जिसमें से एक मेरी है, बाकी उधर है। ये 4 नंबर दुकान थी। पहले भी अतिक्रमण हटाने आते थे तो कागज देखते थे, चले जाते थे। ये 50 सालों में पहली बार आया कि कोई अफसर कागज नहीं देखा और सीधे बुलडोजर लगा दिया। चिल्लाता रहा, कागज देखो, मेरे पास कागज है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। सालाना 4800 रुपये मैं फीस भरता हूँ इसकी, फिर भी कोई नहीं सुनने, कोई अफसर आगे आया ही नहीं। ये बात साफ है कि आपकी नाराजगी होगी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये तो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ दंगा हुआ था और ये दंगाइयों के ऊपर दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। शरीफ आदमी, दुकानदार आदमी के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है, और लीगल चीज के ऊपर हो रही है? तो यहाँ पे जो अतिक्रमण हटा है बाकी का, तो उसमें और भी कोई लीगल है या वो सब अतिक्रमण था? सब अतिक्रमण था। तो आपको लग रहा है कि इस अतिक्रमण के चलते आपको भी नुकसान? हाँ, मेरे को दंगा की वजह से नुकसान हुआ। एक कहते हैं ना, कहावत है, गेहूं के साथ घून भी पीस लिया। ये बताइए कि आपकी इस दुकान पे कितने लोग डिपेंडेंट थे, कितनी लोगों की रोजी चलती थी, कितनों को नुकसान होगा? 3-4 लेबर थी, हम बाप बेटे थे, 5 आदमी थे, यही थे। बाकी घर का परिवार का खर्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, एक बिटिया की अभी शादी करनी है, अब ये नवंबर में था। ये 1977 यानी 1977 is the year he told me that his father must have got the allotment. ये आपके पिताजी की दुकान रही होगी? पिताजी की दुकान, पहले पिताजी संभालते थे, फिर मैं संभालता हूँ, अब मेरा बेटा संभालता है। Okay, a shop that has been in his family for 3 generations is now, as you can see, just a source of scrap now. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब. So, you know, these are the human stories that are coming out of this drive that was initiated by the Municipal Corporation of Delhi. Idea behind it may have been removal of any illegal encroachment that is there in this area. But the question does arise, why now? It's been 30-20 years since this encroachment has been here. Was the MCD sleeping then? Why didn't they take any action earlier? And of course, there have been other encroachment removal drives, but then you remove temporary structures that are there in that area. You do not go and break down a concrete structure. So the big question that we are asking is, why now? Now I'm quickly going to take you towards that masjid that you see over there, that mosque. That's the place where everything happened. The riots, and while the residents of this area were still recovering from it, the MCD bulldozers came here, and this is the road which was basically subjected to the entire encroachment drive. Beyond that is the mandir, the temple, where the bulldozer came and halted. That temple. So our correspondent Saurabh Shukla gets us what exactly happened when the bulldozer reached that temple. People here at temple, they are themselves removing this illegal encroachment. So this is happening right now. We are showing you the visual that how the people of the temple, they are removing the encroachment outside the temple. So that was the time when Vrinda Karat arrived, and you can see he's removing that
the roof and the shed outside the temple. So locals are very angry that they have demolished the encroachment outside mosque, but they haven't demolished the encroachment outside temple. So there is they have ill-treated Muslims. That's what the locals are saying. But now the people at temple, they are themselves removing this encroachment. So one thing is very clear, that this area which you can see, the orange grill, is the encroachment. And MCD is also saying that they have confirmed that it is an encroachment, that they were about to demolish it, but by then Vrindagarat arrived with the order, so they could not demolish. And you can see the demolishment just beside that. You can see that tin shades. They have demolished everything till temple, but they haven't touched the temple. The demolition at mosque also happened after the Supreme Court's order. I was there telling that the order is there, and the officials are saying that they cannot do anything. They haven't received the order yet. So the question is, if this entire road is full of encroachments, why are there certain areas that were left? Well, there was a stay that was a status quo that was ordered by the court, and that's when the information actually had reached here via media, but the officials of MCD refused to stop for another 2 hours. And as Mr. Gupta, who we just met, he told me, he informed them, he pleaded to them that please don't do this, the court has given a stay, but they did not stop. Now I'm going to quickly show you what's happening at the back over there. That's a juice center, and again, everything that they had, their livelihood, their source of income, has turned into scrap. And there is a huge scrap market around here. Most of the people living here are working in that sector. And that's exactly what we're seeing. Now they're turning what used to be their livelihood, source of income, into scrap. This entire area, since morning, has been seeing a footfall of media, the security personnel there's a huge battalion of security personnel over here, and this entire area has been now cordoned off. But since morning, NDTV has been standing here and reporting every second of it. Take a look. First of all, we would like to show what exactly is happening in this area of Jahangirpuri. This is the exact spot from where the clashes started on Saturday. You can see the bulldozer already removing encroachment of the area, not just the rickshaws and the other small stalls that were placed on the lanes, but they are also removing the extra we can say the boards that were put by certain business owners on the road or outside their property. They are also being removed. You can see heavy media presence. The local community members are also here. There are police officials that are present here, including the Special Commissioner of Police, the Commissioner of MCD, North MCD is also present here. इस वक्त मैं आपको टॉप एंगल से दिखाता हूं कि एमसीडी की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किस तरह से चल रही है। ये सामने सी ब्लॉक है और सी ब्लॉक में चाहे दुकान हो, मकान हो, चाहे ये कबाड़ का सामान हो, चाहे और कोई चीज़ हो, जो भी यहाँ पर इलीगल दिखाई दे रहा है, एक तरफा एमसीडी लगातार सब कुछ तोड़ रही है। यहाँ पर एमसीडी के 9 बुलडोजर आए हैं और 9 बुलडोजर अलग अलग इलाकों में लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो सामने देखिए कि बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है, वो कबाड़ वहाँ से बुलडोजरों के जरिए हटाया जा रहा है। जेसीबी मशीन्स हैं, उनके जरिए सारा जो कबाड़ है उसको हटा रहे हैं और मकानों के आगे जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जा रहा है। Well, the demolition drive for now has stopped and the bulldozers have gone back. However, extensive damage done here outside the mosque where the gate has been demolished. I have one person here with me to talk to us about more. The shop that you see behind, the shutters of which are closed, that belongs to him. We shall speak to him for more. Sir, अपना नाम बताएं। मेरा नाम साजिद सैफी है। ये आपका यहाँ पर आपने दुकान आपकी साथ में थी, ये मस्जिद के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैलरी की शॉप थी। तो किस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पर जो है मस्जिद का गेट और ये तोड़ने आए, तो कोई भी पहले से आपको नोटिस दिया गया था, कोई सूचना थी? आपको 10 मिनट का भी टाइम दिया गया कि हम ये ऐसा कुछ करने वाले हैं? हमें तो पता ही अब चला है, जब उठ के आए तो देखा है फोर्स है, बुलडोजर है, लोडर पड़े, 400 फोर्स बुला रखी है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो एकदम अचानक हुआ है जो भी है। फिर सुप्रीम चलो जो हुआ, थोड़ी बहुत तुड़ाई फुड़ाई हुई,
एमसीडी की जो अलाटमेंट दुकान है वो भी तोड़ दी। इस वक्त राजा इकबाल साहब हैं, ये मेयर हैं उत्तरी दिल्ली के, और उनके आदेश पर ही ये डेमोलिशन हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तरी दिल्ली में और बहुत सारा ऐसा अतिक्रमण है जिसको अब तक आपने नहीं हटाया है, और उसको भी हटाएंगे। हमने देखा चाहे आदर्श नगर हो, मॉडल टाउन के पास हो, तमाम अतिक्रमण हम देखेंगे। यहाँ के बाद आपके बुलडोजर वहाँ भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मैं पूरी दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सामान खुद हटा लीजिए, अब इसके बाद उन्हीं लोगों का नंबर है। मतलब अच्छे पॉश सैनिक फार्म में भी जाएंगे आप लोगों के बुलडोजर, जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं। ये तो रेडी पटरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, गरीब हैं, ये विरोध भी नहीं करेंगे। आपका जाहिर सी बात है इलीगल है। देखो, हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है, और हम भी इन लोगों का पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है। So you were just hearing the mayor of this area, the North Delhi MCD, and he was saying that he's going to warn the entire Delhi that if there are encroachments, they should remove it. Saurabh was asking him if the treatment that is met out to the encroachers will be same for the poor and the rich. He claims yes, it will be. But the question is, we all know the MCD elections are coming, and the actions of MCD, which is right now ruled by the BJP, are highly questionable right now. Our correspondent spoke to the North Delhi MCD mayor, Mr. Raza Iqbal Singh. Let's hear what he has to say. इस वक्त राजा इकबाल साहब हैं, ये मेयर हैं उत्तरी दिल्ली के, और उनके आदेश पर ही ये डेमोलिशन हो रहा है। सर, सवाल सबसे बड़े उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर के। 3 दिन पहले यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, और ऐसे में ये ड्राइव चलाना, ये टाइमिंग कितनी उचित लगती है आपको? देखो, ऐसा है कि अभी तो हम जितनी भी पब्लिक लैंड के ऊपर जो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा था, अभी तो हम खाली वही क्लियर कर रहे हैं, तो इससे रोड भी खुलेगी और लोगों को भी खुशी का लोगों ने प्रकट किया है। इकबाल साहब, टाइमिंग क्यों लेकर के? यहाँ दंगे हुए थे, माहौल खराब हुआ था, और ऐसे में ये बुलडोजर चलाना आपको लगता नहीं है इससे इसका संकेत पूरे देश में एक नेगेटिव जाएगा कि थोड़ा रुक लेते, 1 हफ्ते पहले रुक लेते या पहले कर लेते? ये वक्त ही क्यों चुना आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा रूटीन का काम है, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और आप ये देखें कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम हटाने के लिए आए थे, लोगों ने आधी रात को तो खुद ही सब साफ कर दिया, और लोगों को भी मुझे लग रहा है कि लोग भरपूर हमारा सहयोग कर रहे हैं। इकबाल साहब सहयोग कर रहे हैं आपका। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तरी दिल्ली में और बहुत सारा ऐसा अतिक्रमण है जिसको अब तक आपने नहीं हटाया है, और उसको भी हटाएंगे। हमने देखा चाहे आदर्श नगर हो, मॉडल टाउन के पास हो, तमाम अतिक्रमण हम देखेंगे। यहाँ के बाद आपके बुलडोजर वहाँ भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मैं पूरी दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सामान खुद हटा लीजिए, अब इसके बाद उन्हीं लोगों का नंबर है। मतलब अच्छे पॉश सैनिक फार्म में भी जाएंगे आप लोगों के बुलडोजर, जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं। ये तो रेडी पटरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, गरीब हैं, ये विरोध भी नहीं करेंगे। आपका जाहिर सी बात है इलीगल है। देखो, हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है, और हम भी इन लोगों का पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है, और लोग अपने आप ही अतिक्रमण हटा लें ताकि हमें भी कोई एक्शन ना लेना। सर, ये जो जिनकी गुमटी तोड़ी है वो सब गरीब लोग हैं, रोजंदारी करते हैं, कमाते खाते हैं, इनकी रोजी रोटी है। और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, मैं भी पत्रकार हूँ और आप भी जमीन की राजनीति करके आए हैं। बिना पुलिस की इजाजत के वसूली भी होती है यहाँ पर इन लोगों से, ऐसे तो लग नहीं जाएंगे। तो लगे तो यहाँ पर किसी की इजाजत से किसी ने तो लगने दिया। देखो, ऐसा है कि अब जो भी है सब पर एक्शन होगा, भले कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या जिन्होंने ग्रैबिंग कर रखी हो, जिसने भी अवैध कब्जा करके सब पर एक्शन है। तो सर, यहाँ पर आपने आज ये कहा कब तक ये ड्राइव चलेगी आपकी? कितने बुलडोजर है, थोड़ा जानकारी दीजिए इस पर। देखो, इस समय यहाँ पर 9 JCB आ रखे हैं और सब पर एक्शन करके जाएंगे। अगर आज एक्शन पूरा नहीं होगा तो कल फिर हम आएंगे। तो मतलब अभी किसी की दुकान घर तोड़ने का प्लान नहीं है? नहीं, हमारा किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं है। हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने आप ही अवैध चीज़ों को हटा दें। तो सड़कों पर जो अवैध निर्माण है वो हटा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इकबाल साहब मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली के। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा है कि इनका बुलडोजर यहाँ गरीबों की बस्ती में चलने के बाद अमीरों की बस्ती में भी चलेगा। देखते हैं कि इनका बुलडोजर सैनिक फार्म चलता है कि नहीं चलता है, जहाँ पर अधिकारियों के, मंत्रियों के फार्म हाउस हैं। फिलहाल यहाँ पे गुमटियाँ तोड़ी जा रही हैं, सड़कों पर जो खोमचे हैं, रेडी हैं, पटरियाँ हैं, उनको हटाया जा रहा है। और इनका कहना है कि ये इनको पहले से करते आए, अगर ये करते आए होते तो यहाँ अतिक्रमण ना होता। फिलहाल खैर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त लाठी MCD के पास है, सत्ता उनके पास है, बीजेपी शासित है, और कार्रवाई भी सोचिए उसी जगह हो रही है जहां पर माहौल खराब हुआ। तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे और मंशा को लेकर भी सवाल उठेंगे। सहयोगी सुशील राठी और अक्षय डोंगरे के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। So if the mayor, Mr. Singh, is to be believed,
Delhi is going to be encroachment free soon, because he says the action is going to be taken against everyone, rich or poor. But right now, let's show you the condition of the poor of this area. Right now, all they're doing is salvaging whatever is left from that used to be a shop where they used to work, where their families used to get a source of income from. This is what the condition of the poor is right now. So we really do wonder what's going to happen as far as MCD is concerned and as far as encroachment in Delhi is concerned. All we can see here are families there, poor families who are just sitting there looking at all the stuff that they have lost, all the loss that they are bearing. That used to be a small place which had a small shop selling mineral water bottle and small knickknacks like that. And right now, they say they have nothing left to support themselves. I'm going to take a very quick break. When we come back, we bring you the political reactions to this action. Welcome back. You're watching NDTV and we are at Jahangir Puri, the place that became the flashpoint today in Delhi politics as the MCD bulldozers came here for an encroachment removal drive. Of course, there were many political reactions to this action. Let's begin with what the Deputy Chief Minister of Delhi has to say. जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाके हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया, जिनके कार्यकाल में, जिनके राज में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बने। Well, it seems that the bulldozer is the top of the mind solution for every politician and every political party, for every problem. It seems the Delhi president, the president of the Delhi BJP, wrote a letter to the MCD and to the police and asking for protection, police protection for a demolition drive, and requested MCD to do this encroachment drive. So what exactly was the reason behind it? Our correspondent Parimal Kumar talks to the Delhi State Chief of BJP. दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, जहांगीरपुरी की जो कार्रवाई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर अभी चल रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि ये रुक जाना चाहिए, आपके पास? देखिए, जो जहांगीरपुरी के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिन दंगाइयों ने निर्दोष और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही यात्रा पर पथराव किया और उस पथराव के बीच में अगर दिल्ली पुलिस आई तो दिल्ली पुलिस के ऊपर गोली चलाई, दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव किया, हिंसा की, ऐसे दंगाइयों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। और मैंने निगम के कमिश्नर और मेयर को पत्र लिखा था। मैं कहा उनकी अवैध कामों पर, अवैध संपत्तियों पर, अवैध अतिक्रमण पर और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं और दोनों का संरक्षण ऐसे माफिया को, ऐसे दंगाइयों को प्राप्त है, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे वही दंगाई थे और वही पकड़े गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका संरक्षण प्राप्त था। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं निगम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्रवाई को त्वरित किया है और आज ये कार्रवाई चालू है।
In their eagerness to remove the encroachment in this area, the MCD team and their bulldozers, they went down this road which has been cordoned off right now. We're going to just show you quickly. And they went beyond that mosque towards a temple. And that's when it seems the CPIM leader, Brinda Karat, who was in this area, she had come down here with the message that the Supreme Court has stayed the drive and said that the status quo should be maintained, and she tried to stop the bulldozer by standing in front of it. Some locals also came over here and they also helped her in stopping the bulldozer. But the question was that the MCD officials continued for almost 2 hours even after the court had stopped and stayed the action. मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर एक स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। हमारे सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। While all this was happening, the political parties were reacting to it. Rahul Gandhi also reacted. He tweeted out saying, firstly targeting MCD and asking them to clear out the hatred in their hearts. Excuse me. Well, that's all we have for you in this bulletin from Jahangirpuri. It's been a hard day for these people. They are in fact not in a situation or a position to talk to us, and we've tried to speak to many of them, but it's heartbreaking to see all these people who have lost their livelihoods and how they're going to rebuild their lives again. That's all we have for you from here. Thank you.